first with the present tense. Let me make you understand that present tense we can write in 4 types. First is simple present tense. Then we have present continuous tense. Then we have present perfect tense. And last, finally, we have present perfect continuous tense. You don't have to write, students. You have to just understand first. Let me explain everything. Present perfect continuous, the last one. Now I'm going to take you an example and explain to you what is the difference. How do we distinguish the 4 tense? For that, we will take one simple example. And for the first group, that means when a person is singular, but let us take he, she, any person's name, and it. For this, the rules are very simple. Let us take she. Let us take any one action. For example, eat. Eat is the action. So if I write she eats, then it becomes simple present tense. She eats, for example, let us take an object. She eats an apple. So when I say she eats, this is simple present tense. When I say she is eating an apple, it becomes continuous tense. And when we say she has eaten an apple, it becomes perfect tense. And finally, she has been eating an apple. This becomes present perfect continuous tense. Now let us understand, when do you use the simple present tense? Simple present tense आप कब use करते हो? Simple present tense is to be used when you are describing an activity which is taking place regularly, generally. जो आप रेगुलरली चीजें करते हो, रोज करते हो, जनरली करते हो, ऐसी एक्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम जनरली करते हैं, रोज करते हैं. So if you are doing some action which is your general action, something which is not just for one time, it is for repeated times. Okay? Like for example, if you are having apple every 2 or 3 days, या maybe every 5 days, 4 days, कभी भी आप खाते हो फ्रूट्स, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो. और कौन सी चीज है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बोल सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम और कौन सी चीजें बोल सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बट आप लोग स्कूल जाते हो ना, रोज स्कूल रोज जाते हो ना, तो आपको स्कूल जाने वाला जो एक्शन है वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल. वो he goes to school. Why he goes to school? Because he is going to school every day. It is a general action. It is a general thing. Regularly school जाता है, तो he goes to school. He studies in the evening. She studies in the evening. Are you getting? Give me a thumbs up. सबको समझ में आ रहा है ये कब यूज होता है? For general actions, for regular actions, whatever we do regularly, whatever we do generally, you have to write in simple present tense. जो भी आप जनरल करते हो, रेगुलरली करते हो. अगर आप खेलते हो, गेम्स खेलते हो, तो आप उसके बारे में बोल सकते हो शी प्लेज बैडमिंटन. शी प्लेज बैडमिंटन का मतलब वो बैडमिंटन खेलती है, शायद रोज खेलती है. ओके एवरीवन, सबको समझ में आ गया? नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको बहुत ध्यान से देखना है. इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज द एक्शन इज गोइंग ऑन व्हेन यू आर टॉकिंग. द एक्शन इज गोइंग ऑन. इस वक्त वो एक्शन चल रही है, इस वक्त.
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. सो एनी एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम and it is not completed. If you have a pencil and pen in hand, you want to note down, you can note down whatever I am trying to tell you. The key words. Simple present tense is used for actions which are taking place regularly, generally. Present continuous is used for the actions which are taking place at that time and they are not completed. Not completed. मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा लेक्चर अभी चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं. जो चीज चल रही है, पूरी नहीं हुई. सबको समझा? नाउ सो अगर कोई पर्सन पढ़ा रहा है इस वक्त, तो हम उसको बोलेंगे ही इज टीचिंग, शी इज टीचिंग. अगर कोई पर्सन मेरे क्लास के बाहर चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, अभी वॉकिंग कर रहा है, वो वॉक कर रहा है, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूंगा? he or she is walking because it is happening right now. So is this clear? Present continuous tense clear? Give me thumbs up quickly. Present continuous tense is clear. Yeah, many students are giving me a good response. Thank you. Thank you. For those who don't have the videos on, yes, thumbs up will help. Now coming to the third part, present perfect tense. Present perfect is used when the action which we are talking of the present tense, but it has completed. The action has been completed. Present tense है लेकिन action complete हो गई. जैसे एग्जाम्पल, मेरा लेक्चर अभी चल रहा है, 6:30 को वो पूरा हो जाएगा. 6:30 के बाद में आप क्या बोलेंगे? सर हैज कंप्लीटेड, सर हैज टॉट इंग्लिश ग्रामर. हो गया पूरा. तो अब आपको कौन सा टेंस यूज करना है? कंप्लीट होने के बाद. कंप्लीट होने के बाद में आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कंप्लीट हो गया लेकिन अभी अभी हुआ है. सो एनीथिंग विच यू जस्ट कंप्लीट, आफ्टर कंप्लीशन यू टॉक अबाउट इट, देन यू आर सेइंग दैट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आज दोपहर में आपने खाना खाया है. खाना खाने के बाद में आप क्या बोलेंगे? खाना खाने के बाद आप बोलेंगे आई हैव हैड माई लंच. ईटन नहीं बोलते, हैड बोलते. आई हैव हैड माई लंच. तो एनीवे, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे और. बट हैव यू अंडरस्टूड? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच हैव बीन कंप्लीटेड. कंप्लीट हो गया. ट्रेड सेकंड चैप्टर introduction. So is that clear everyone? When the action is completed, it becomes present perfect tense. And the last is present perfect continuous tense. This is little bit unique. Present perfect continuous का use हम लोग बहुत कम करते हैं डे टू डे लैंग्वेज में. डे टू डे में हम इसको कम यूज करते हैं. अगर आप देखेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? एक्शन इज गोइंग ऑन बट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीरियड. एक पर्टिकुलर टाइम से वो चीज हो रही है और अभी भी हो रही है. अगर पर्टिकुलर टाइम से कोई एक्शन हो रही है और अभी भी हो रही है, व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीरियड एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, then you use present perfect continuous. Continuous है, अभी भी चल रहा है, but perfect continuous है, means it is taking place on a particular time. For example, I am teaching you English from 15th April. Suppose हमारे बैचेस 15th April से शुरू हुए, right?
सो मैं उसको इस टेंस में बोल सकता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोल सकता हूँ दैट आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग बोलूंगा मैं, परफेक्ट टेंस में बोलूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई दूसरा पर्सन तो मैं बोलूंगा ही हैज बीन टीचिंग। पुष्पा मैडम के बारे में बोलता हूँ, पुष्पा मैडम हैज बीन टीचिंग मराठी। सिंस वर्ड यूज करने का, सिंस 3 months, सिंस 3 months, है ना, ऐसा कुछ बोलने का। सो इफ somebody is doing the action from particular time, 1 month, 2 month, 3 month, 1 year, 2 year, whatever it is, time period can be small or large, it doesn't matter, time period small हो या large हो, when you know the period and you are talking कि तब से हो रहा है अभी तक, then you use this tense. Am I clear on this? Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, टाइम पीरियड छोटा भी हो सकता है, टाइम पीरियड कैन बी 5 minutes, टाइम पीरियड कैन बी 1 hour, टाइम पीरियड कैन बी what days, टाइम पीरियड कैन बी weeks, it can be months, it can be years, it can be centuries. But if you know the time period, from how much time it is taking place and it is still going on, then you use this. So first and foremost, you must understand which tense is to be used for what. मैं कुछ बोलने के लिए मुझे कौन सा टेंस कब यूज करना है, पहले मुझे ये समझना चाहिए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है इन इंग्लिश, व्हेन यू आर अप्लाइंग द रूल्स फॉर ही, शी, नेम एंड इट, द रूल्स आर दिस। पहला रूल, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब को एस लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब में एस लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है, वर्ब में एस लगाना है। कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगाना है और ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, इज या आर। यहाँ पे आपको हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, पार्टिसिपल यूज करना है वर्ब का। जैसे ईट, एट, ईटन, हर वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे ईट, एट, ईटन, इसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये वाला यूज होता है परफेक्ट टेंस में, याद रखना। परफेक्ट टेंस में ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, परफेक्ट टेंस में ये आता है। सो परफेक्ट टेंस में जब भी आप बोलेंगे यू मस्ट नो द वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गया। और ऑफ कोर्स हैज बीन जब लगाते तो आईएनजी आता है वापस, और इन सब में हैज आता है, ही, शी, नेम या इट रहेगा तो इसके लिए ये रूल्स हैं। लेकिन अगर आई, वी, दे, यू है तो रूल्स अलग है, आई, वी, दे, यू, रूल्स आर डिफरेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, if you are talking about I, we, they and you, then the rules will be different. Do not write, students, do not write, just try to concentrate what I am trying to tell you. When you are talking for he, she, any person or it, the rules are this. But if you are talking for I, we, they and you, the rules are different. What are the rules? You want to know? Okay, the rule, for example, I में लेता हूँ I और एक एक्शन लेता हूँ, यही एक्शन लेता हूँ eat. I eat an apple. I don't have to write I eats. इसमें सिर्फ मुझे eat लिखना है, eats नहीं लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं, सामने वाले थर्ड पर्सन के लिए जब बोलते हैं he eats but I eat. Are you getting? He or she eats but I eat. Same tense, huh? Same tense. It is the same tense. But when I am talking for the third person, he or she, it is S. You have to put S in the verb. He plays, I play. He writes, I write. He goes to school, I go to school. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Sometimes English can become very funny language. And I remember I had, in our college, we had a professor, and he had a habit of putting S in many things. So many times this can happen with us also. Many people mix it up. So if somebody says, I goes to school, does it sound funny?
Yeah, it is funny because I goes to school is wrong. You don't say I goes to school. I goes to market. No, I go to market. He goes to school. But I goes to school नहीं होता. I go to school. So sometimes if you have a habit of putting S many times, it can look very funny. So our teacher used to tell to me, Bhojne, you comes here. Bhojne, you comes here. Sir, what happened? Of course, we couldn't laugh that time because teacher है भाई. But no offense, कभी कभी हम सब गलती करते, ऐसा होता है. और ग्रामर की समझ हमें थोड़ी सी ये सिखाती है कि क्या फर्क है, किधर एस लगाना है, किधर एस नहीं लगाना है. ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा ना, कभी कभी आप भी गलती करने वाले हो, तो कभी आप भी गलती करोगे तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे नहीं ऐसे. ओके नाउ. आपसे इंग्लिश स्पीकिंग में कभी गलती हुई? किससे? आपसे. या ऑफ कोर्स भाई, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, बट आई एम अवेयर. अगर गलती हो जाएगी तो पता चल जाता है भाई, आई स्पोक रॉन्ग, एंड स्लोली स्लोली यू विल लर्न. गलतियां होती है बोलने में, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बट इफ यू प्रैक्टिस then generally mistake will not happen. Generally mistake will not happen. Now for I, in present continuous tense, what will I write? I में is तो नहीं लगाएंगे, I में लगाएंगे am. ये helping verb बदलेगा. I है तो am आएगा, we है तो are आएगा, they है तो are आएगा, you है तो are आएगा. हेल्पिंग वर्ब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से. आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये सिमिलर है, इसमें कोई फर्क नहीं है. ऐसे यहाँ पे शी इज ईटिंग है, यहाँ पे आई एम ईटिंग एन एप्पल है. कंटिन्यूअस टेंस हो गया. अभी परफेक्ट टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव ईटन, इसमें हैज नहीं आता, इधर हैज आता है, इधर हैव आता है. आई हैव ईटन एन एप्पल. नाउ दिस इज वेयर अनदर एग्जांपल ऑफ where many people get confused and they don't know where to use have and where to use has. Have कब use करना है? Have is used for I, we, they, you. I, we, they, you. More than one, plural, you use have. I have seen the movie. समझो एक फिल्म है, मैंने देख ली है. मेरी फिल्म देखने का काम पूरा हो गया ना. अभी कुछ दिनों पहले देखी है समझो फिल्म, और आप उस फिल्म की बात करोगे तो मैं आपको क्या बोलूंगा? मैंने फिल्म, जनरल है क्या ये चीज? रोज फिल्म देखता हूँ क्या? वही पिक्चर रोज देखता हूँ क्या? मैं वही पिक्चर रोज तो नहीं देखता हूँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा. अभी इस वक्त देख रहा हूँ क्या वो पिक्चर? कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा. पिक्चर देखने का काम पूरा हो गया, लेकिन अभी हुआ है, कुछ दिनों पहले हुआ है, ताजा न्यूज है, तो मैं बोलूंगा आई हैव सीन द मूवी. आई हैव सीन द मूवी. प्रेजेंट टेंस में देखने का काम हो गया है. हो सकता है मैंने कल फिल्म देखी है, परसों देखी है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, हमारे कॉन्वर्सेशन के हिसाब से जब पूछा जाता है मुझे, आपने फिल्म देखी क्या? हाँ मैंने देख ली है, तो प्रेजेंट टेंस ही है ये. बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो अगर मैंने 2 दिन पहले देखी है पिक्चर तो ये प्रेजेंट टेंस कैसे हो गया, है ना? बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है मन में, सर ये प्रेजेंट टेंस कैसे? फिल्म तो मैंने 2 दिन पहले देखी है, वो तो हो गया. हाँ बेटा 2 दिन पहले देखी है तुमने, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट एक्शन हैज बीन जस्ट टेकन प्लेस अ फ्यू days, so in the context it is present perfect tense. Did you understand everyone? Did you understand everyone? तो इसको आप present perfect tense में बोलना. जैसे एग्जाम्पल आपका टेस्ट था, सपोज when was the last test students? last test कब हुआ आपका? हिमांशु, when was your last test? कब लिखा टेस्ट? हिमांशु तो डर गया, बोल भी नहीं रहे. दिलीशा, when was your last test? 31st जुलाई, राइट? तो 31 जुलाई फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट हुआ लास्ट, है ना?
तो यू विल से, अभी तुम क्या बोलोगी? आई हैव, व्हाट विल यू से दिलिशा? आई हैव कंप्लीटेड माई एग्जाम। आप सब लोग मिलके क्या बोलेंगे? सर वी हैव कंप्लीटेड द टेस्ट सीरीज। आप सब लोग मिलके क्या बोलेंगे? सर वी हैव कंप्लीटेड द टेस्ट सीरीज। वी हैव बोलेंगे, वी हैव कंप्लीटेड, वी हैड कंप्लीटेड नहीं बोलेंगे। बचपन की बात थोड़ी बता रहे हो मुझे तुम, अभी एग्जाम हुई है। हाँ, अगर तुम बचपन की सेकंड स्टैंडर्ड की बातें बता रहे हो, सर आई हैड कंप्लीटेड माय एग्जाम एंड आई वेंट टू माय विलेज, उस समय की कहानी बता रहे हो तो पास्ट टेंस में बताओगे। ये तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है ना। मैडम वेटिंग लिस्ट में कौन है देखो जरा, सब लोग वेटिंग लिस्ट में क्या करते रहते हैं इतने लोग। यस, सो आर यू विथ मी, आर यू विथ मी, आर यू विथ मी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, when will you use have and when will you use has? सिंगल पर्सन के लिए हम लोग हैज यूज करेंगे। अब्दुल्ला हैज कंप्लीटेड द एग्जाम। अब्दुल्ला हैज कंप्लीटेड द एग्जाम ऑन फ्राइडे, है ना अब्दुल्ला? अब्दुल्ला हैज कंप्लीटेड द एग्जाम ऑन फ्राइडे। लेकिन सबके बारे में बोलना है मुझे तो क्या बोलूंगा मैं? All the students have completed the exam on Friday. All the students have completed बोलूंगा। और मुझे अगर किसी एक पर्सन के बारे में बोल रहा है, ही या शी यूज करके बोलना है, तो वापस वही has. So Abdullah has completed the exam, but when I say the students have completed the exam, it is the same tense. The tense is the same. Which tense? Which tense? It is present perfect tense. It is present perfect tense. But you can see the difference of the words. So many people get confused. अरे इधर has आया, इधर have आया, ये अलग अलग tense है क्या? No, it is the same tense, हाँ दिलिशा? Has and have, it is the same tense. You have to focus on this. Has eaten, have eaten. It is same. And last is I have been eating an apple. Suppose मैं 15 मिनट से खा रहा हूँ, 15 मिनट से एप्पल खा रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ। स्लो ईटर्स, आप में से कौन स्लो ईटर है? कौन है जो बहुत धीरे धीरे खाना खाता है? धीरे 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 खाते, आराम से। चालू है उधर पिक्चर चालू है और इधर खाना खा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आप फिर ये यूज करना सृष्टि का, I have been eating an apple since last 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, जो भी है बोल देना। Okay. So now look at this chart once again and please notice the difference between the present tense usage for different subjects. Different group बना के लिखो, ये टेबल लिखो अच्छे से और एकदम अच्छे से इसको दिमाग में रखो।